اللہ رب العزت کبھی بھی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، ہمیشہ عالم کو اپنا دوست بنایا کرتا ہے۔ عالم ہی کو رب اپنا دوست بناتا ہے، جاہل کو نہیں بناتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا میں کیوں آئے؟ آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ شیش علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ زکریا علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے لوگ اس لیے دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے، جہنم سے ڈرائے اور جنت کی خوشخبری سناتے چلے۔ سنیت اسٹوڈیو کی آمد الحمدللہ یہ پورے نیپال میں ابھی نمبر 1 پہ ان کا نیٹ ورک چل رہا ہے۔ سنیت اسٹوڈیو آپ لوگ لائک کمنٹ سبسکرائب مارتے جائیے۔ اور دیکھ رہے ہیں علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کچھ ایجوکیشن پہ بات کروں، کیونکہ اصل موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے موجود عالم دین تشریف فرما ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایجوکیشن پہ بات کر لوں جو ہمارے اندر کمی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں اللہ رب العزت کبھی بھی کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا، ہمیشہ عالم کو اپنا دوست بنایا کرتا ہے۔ عالم ہی کو رب اپنا دوست بناتا ہے، جاہل کو نہیں بناتا ہے۔ اور یہیں پہ بس نہیں بلکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا میں کیوں آئے؟ آدم علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ شیش علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ زکریا علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے لوگ اس لیے دنیا میں آئے تاکہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے، جہنم سے ڈرائے اور جنت کی خوشخبری سناتے چلے جائے۔ تمام جتنے بھی انبیاء آئے سب اسی مشن کو لے کے آئے، سب اسی طور طریقے کو لے کے آئے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرانا ہے، جہنم سے ڈرانا ہے اور جنت کی خوشخبری سنانا ہے۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ شراب سے بچنا ہے، جوا سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، حرام کاریوں سے بچنا ہے۔ لیکن سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دنیا میں کیوں آئے؟ رسول نے ارشاد فرمایا میں بھی دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو شراب سے دور کروں، تاکہ لوگوں کو زنا سے دور کروں، تاکہ لوگوں کو گناہ سے دور کروں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے اور سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اور آپ بھی چلے جائیں گے دنیا سے اور آپ نے سماج سے سارے گناہوں کو دور کر دیا، تو کیا آپ کے چلے جانے کے بعد کوئی شرابی نہیں بنے گا، کوئی جواری نہیں بنے گا، کوئی زانی نہیں بنے گا، کوئی گنہگار نہیں بنے گا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے چلے جانے کے بعد یہ قوم بھی گناہوں میں ملوث ہو جائے گی، شراب کو ہاتھ میں لے گی، جوا اور زنا کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن سوال ہوا یا رسول اللہ تو پھر اس قوم کو کون بچائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا میرے چلے جانے کے بعد جو میں مشن لے کے آیا ہوں اس مشن کو آگے لے کر کوئی اور نہیں بلکہ میرے ہی امت کے عالم دین آگے لے کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ عالم دین آگے لے کے بڑھیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کتنے پرسنٹیج لوگ ہمارے سماج میں پڑھے لکھے ملتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، صرف دولت ہمارے لیے سب کچھ ہے، صرف جائیداد ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ نہیں مسلمانوں، صرف دولت، جائیداد اور پیسہ اور دولت سب کچھ نہیں ہے، بلکہ آج کے اس پرفتن دور میں، بلکہ آج ہی نہیں بلکہ ہر دور میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز رہا ہے وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ اگر آپ لاکھ پروٹیسٹ کر لیں، لاکھ پنچایت کر لیں، لاکھ آپ دھرنے رکھ لیں، آپ کو ادھیکار نہیں ملنے والا۔ آپ دنیا کے دربار میں اور لوگوں کے دربار میں آپ اپنا پروٹیسٹ کرتے رہے اور آپ اپنا جھولی پھیلاتے رہے، کوئی آپ کو مدد کرنے والا نہیں۔ آپ اپنا ادھیکار لینا چاہتے ہیں، آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں آپ چاہتے ہیں آپ کو کچھ ملے تو آپ کو لوہے کی تلوار سے آگے نہیں بڑھنا ہوگا بلکہ قلم کو اپنا تلوار بنانا ہوگا، تب جا کے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔
साहब सिर्फ आज हम समझ रखे हैं कि पैसा है ये हमको काम देगा। नहीं नहीं, अगर आज के इस पुरफेतन दौर में अगर हथियारों बम के बुनियाद पर अगर आप आगे बढ़े तो आपको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अगर आप बम बारूद के बुनियाद पर लोगों से मुकाबला करना चाहे, लोग आपको मिसमार कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया में कामयाब हो, दुनिया में मशहूर हो जाए, दुनिया में हमारा बड़ा ओहदा हो, आपको मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। आप भी कोर्ट गए होंगे, आप भी जज के सामने गए होंगे, नहीं गए होंगे, कुछ लोग तो जरूर गए होंगे। जज क्या करता है? जज कभी भी किसी मुजरिम से हाथापाई नहीं करता है। जज कभी भी किसी कैदी के गर्दन पर अपना बंदूक नहीं रखता है। आखिर वो करता क्या है? वो कभी नहीं किसी मुजरिम को धमकाता और डराता है, और कभी नहीं कहता है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दनों को काट दूंगा। आखिर वो जज क्या करता है? जज का पावर इतना होता है, वो जिस्म से कुछ नहीं करता है, बल्कि उसके हाथ में जो कलम है, उस कलम में इतना ताकत होता है तो एक सिग्नेचर करता है तो किसी को फांसी के तख्ते पे लटका देता है, और एक सिग्नेचर करता है तो किसी को फांसी के तख्ते से उतार कर उसकी जिंदगी को बख्श दिया करता है। साहब हमने क्या समझा? आज हमारे समाज में नशेरी बढ़ रहा है, जुआरी बढ़ रहा है, जानी बढ़ रहा है, शराबखोर बढ़ रहा है, गांजा पीने वाला बढ़ रहा है, भांग खाने वाला बढ़ रहा है। साहब ये सब किसने सिखाया? ये सब जहालत ने सिखाया है। हमको लूटा हमारी जहालत ने, हमें तबाह किया हमारी जहालत ने, हमें रुस्वा किया हमारी जहालत ने, हमें जलील किया हमारी जहालत ने, चुगलखोर होने पर मजबूर हमको हमारी जहालत ने किया। माँ बाप की इज्जतों को पामाल करने पर मजबूर हमको हमारी जहालत ने किया है। अगर हम जहालत से दूर होकर हम अगर रोशनी में आ जाए, इल्म में आ जाए, और अपने हाथ में गांजा नहीं, शराब की बोतलें नहीं, बल्कि एक हाथ में कुरान रख ले और एक हाथ में रसूल का किरदार रख ले, तो देखें ये दुनिया में भी आपको सलाम करेगी, और जब आप मर के इस दुनिया से चले जाएंगे तो फरिश्ते भी आप पे नाज किया करेंगे। साहब ये हमें क्या हो गया? हम दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, हम ऐशो इशरत की तरफ बढ़ रहे हैं। आजकल समाज में तो अजीब माहौल है। साहब मैं की आवाज खींच रही है, दुनिया समाज में अजीब हाल है, अजीब माहौल है। बेटा थोड़ा जवान हुआ ना, चलो पासपोर्ट बनाते हैं और विदेश भेज देते हैं, कतर भेज देते हैं, सऊदी अरबिया भेज देते हैं। बेटा कमाएगा, पैसा लाके देगा, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। साहब अपने बेटे की जिंदगी को बर्बाद न करो, चंद पैसों की खातिर, चंद सिक्कों की खातिर अपने बेटे की जिंदगी को खराब न करो, बर्बाद न करो। ये जवान होके भी पैसा कमा सकता है, ये पढ़ लिखने के बाद भी पैसा कमा सकता है, ये एजुकेटेड होने के बाद भी पैसा कमा सकता है, लेकिन कम उम्र में आपने उसका एज बढ़ा के आपने पासपोर्ट बना दिया, और उसके बाद आपने उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। जिस कौम को, जिस नौजवान को अपने कौम का सिपा सालार बनना था, जिस जवान को अपने कौम का कमांडर बनना था, आज वो जवान सऊदी अरबिया में टॉयलेट साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, और किसी की यहाँ नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। साहब मैं इसको बुरा नहीं कहता, लेकिन बुरा तब लगता है जब आपने अपने बेटों को सऊदी अरबिया ऐसी हालत में भेजा जब आपका बेटा बोलना नहीं जानता था, आपका बेटा समझ नहीं रहा है अच्छे से, आपके बेटों को यह भी समझ नहीं है कि कब क्या बोलना है और कहाँ क्या बोलना है, और ऐसी हालत में आपने अपने बेटे को सऊदी अरबिया भेज दिया। ये बेटा 50,000 जरूर कमाएगा, ये बेटा 60,000 जरूर कमाएगा, ये बेटा 1 लाख जरूर कमाएगा, लेकिन आप याद रखें जब उसे कभी भी इल्म वाले से मुकाबला पड़ेगा, जब कभी उसे एजुकेशन वाले लोगों के सामने बैठना पड़ेगा, तब उसे एहसास होगा कि मेरे बाप ने चंद पैसों के खातिर, चंद सिक्कों के खातिर मेरी जिंदगी को बर्बाद किया है, मेरी जिंदगी को तबाह किया है। उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? और जब बेटा आपसे नाराज होगा और जिस ऐशो इशरत की ख्वाहिश में अपने बेटे की जिंदगी को चंद पैसों की खातिर तबाह किया है, कल वो बेटा घर आएगा और किसी वजह से अगर वो पैसा नहीं कमा सका तो आपको आके गाली देगा, आपको बुरा भला कहेगा और आपको अपने घर से निकाल देगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप बच्चों को सऊदी अरबिया बाद में भेजे, पहले उसे एजुकेशन दे दे ताकि ये बच्चा कहीं भी रहे तो इज्जत की जिंदगी गुजार सके, इज्जत की जिंदगी गुजार सके। साहब हमें क्या हो गया है? हमने अपने अपनों को हमने लूटा है,
साहब एक 60,000 कमाने वाला, आप कभी बैंक का चक्कर लगाइए, बैंक का चक्कर लगाइए। मैं मुंबई जैसे शहर में रहा और मैंने वहां भी देखा 60,000 कमाने वाला लड़का, 1 लाख और 1.5 लाख सैलरी पाने वाला लड़का जब बैंक में जाता है और किसी कारण से उसका पैसा नहीं निकल पाता है बैंक से, किसी कारण से उसका पैसा ना निकल पाया ना, तो बैंक मैनेजर क्या कहता है कि भाई कुछ एप्लीकेशन दीजिए, तब जाके मैं आपका प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। अब देखें नतीजा क्या होता है। अब ये 1 लाख कमाने वाला, 50,000 कमाने वाला, 1.5 लाख कमाने वाला 30 रुपए के फॉर्म लेकर कभी इसके पास भटकता है, कभी उसके पास भटकता है, कभी इसके पास भटकता है। साहब तुम्हें क्या हो गया, क्यों भटक रहे हो, आखिर ये 30 रुपए का फॉर्म लेके क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो। वो नौजवान जवाब देता है, साहब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मेरे पास दौलतों की कमी नहीं है, मेरे पास मकान है, मेरे पास गाड़ियां हैं। फिर सवाल होता है तो फिर ये 30 रुपए के फॉर्म लेके क्यों भटक रहे हो। वो नौजवान जवाब देता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। भाई मेरा फॉर्म भर दो, भाई मेरे लिए एप्लीकेशन लिख दो, भाई मेरे लिए बैंक मैनेजर को कोई दरखास्त लिख दो। उस वक्त वो बच्चा 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाला दर दर की ठोकरें खाता है, और दर दर की ठोकरें खाता जब कोई उसको मदद नहीं करता है तो कहीं किनारे में बैठकर वो खून की आंसू रोना शुरू कर देता है, और कभी कभार अपने आप को कोसता है, कभी माँ बाप को दिले दिल में गाली देता है। हाय अफसोस कि मैं कहाँ आ गया, हाय अफसोस मुझे किस वादी में होना चाहिए था और मैं किस वादी में आ गया हूँ, मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए, क्योंकि नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सिर्फ दीन नहीं सिखाया है, सिर्फ कुरान नहीं सिखाया है, सिर्फ हदीसें नहीं सिखाया है। नबी ने ये नहीं कहा कि कुरान पकड़ के घर में बैठे रहो, नबी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद पकड़ के घर में बैठे रहो, बल्कि नबी ने ये भी कहा है कि एक हाथ में कुरान की तालीम रखो तो एक हाथ में दुनिया की भी तालीम रखा करो, ताकि तुम दीन के भी मामले में रुसवा न हो और दुनिया के मामले में भी तुम रुसवा न होते हुए नजर आओ। साहब ये क्या हो गया, ये हम किस मोड़ पे आ गए साहब। एक मर्तबा हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कुछ कैदियों को लाया गया, तो सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे कत्ल कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए, इसकी गर्दनों को उड़ा दिया जाए, क्या सलूक किया जाए। रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा मैं इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी राय हो तो मैं बातें कर लूँ। साहब ने अर्ज किया या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूलल्लाह आप जो चाहें कर सकते हैं। हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन कैदियों के करीब बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद कहते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी गर्दनों को न काटा जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी गर्दनों को छोड़ दिया जाए, तुम्हारी जान बख्श दी जाए, तो सुनो जो इल्म तुम जानते हो वो इल्म मेरे सहाबा को बता दो, मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा, मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। साहब बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि आज हमारे समाज में जाहिलों की कमी नहीं है। जिस समाज को मेरे आका ने शराबियों से दूर पाक किया था, आज वो समाज शराबियों से भरा हुआ है। जिस समाज को मेरे आका ने जानियों से पाक किया था, आज वो समाज जानियों से भरा हुआ है। जिस समाज को मेरे आका ने गुनहगारों से पाक किया था, आज वो समाज गुनहगारों से भरा हुआ है। लेकिन नहीं साहब, आपको ये समझना होगा, आला हज़रत मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने उस वक्त जो मुकाबला किए थे दुनिया से, उस वक्त भारत की सरजमीन पर अंग्रेजों की हुकूमत थी, और अंग्रेज ने तो भारत में तो जुल्म सितम का इतना पहाड़ तोड़ा था, इतना पहाड़ तोड़ा था जिसकी इंतहा बाकी न रही। और वो लोग इतना लोग को ऊपर बहुत जुल्म सितम कर रहे थे, कौन? अंग्रेज कर रहे थे भारत की सरजमीन पर। लेकिन इतना ही पे वो बस नहीं, बल्कि
गुजर जाना चाहता हूँ कि आला हजरत ने, आला हजरत अंग्रेज के टाइम में थे ना, आला हजरत अंग्रेज के टाइम में, और अंग्रेज बहुत जुल्म सितम कर रहा था। आखिरकार अंग्रेज इस हद को बढ़ गया कि ईमान पर भी हमला करना शुरू कर दिया, और वो लोग अंग्रेजों ने अपना अदालत बनाना शुरू किया और कहा मुसलमान जो अपने दरबार में जाते हैं, अपने कायदा कानून के एतबार से, जो अपने शरीयत के एतबार से जो फैसला लेते हैं, मुसलमानों की दरबार में न जाए, मौलाना की दरबार में न जाए, मुफ्तियाने केराम के दरबार में न जाए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दरबार में न जाए, बल्कि मैं अपना एक अदालत बनाता हूँ। इस अदालत में वो आएगा और मैं जो फैसला सुनाऊंगा उसी को उसे मानना होगा, उसी को एक्सेप्ट करना होगा। साहब अंग्रेजों ने अपना अदालत बनाना शुरू किया। जैसे ही ये बना आला हजरत को लगी तो आला हजरत बेचैन हो गए और बेकरार हो गए, और बेचैन और बेकरार होकर आला हजरत ने उस वक्त उस अंग्रेजों से जो मुकाबला किया था, बम बारूद के बुनियाद पर नहीं किया था, हथियारों गन के बुनियाद पर नहीं किया था। मुमकिन है कि आला हजरत बंदूक लेके आगे बढ़ते तो आला हजरत को पीछे हटने पे मजबूर होना पड़ता। अगर आला हजरत बारूद लेके आगे बढ़ते तो मुमकिन था कि आला हजरत को पीछे होने पर मजबूर होना पड़ता। इसलिए आला हजरत ने अंग्रेजों से जो मुकाबला किया था बम बारूद के बुनियाद पर नहीं किया था, बल्कि अपने कलम से किया था। और वो कलम किसी दुनियादार को नहीं दिया था, बल्कि अपने शागिर्द सदरुल शरिया को दिया था, और उन्हें एक अदालत भी दिया था और कहा था ओ सदरुल शरिया, मैं तेरे हाथ में कलम भी दे रहा हूँ और अदालत भी दे रहा हूँ। याद रखना कभी भी इंसाफ का खून नहीं बहाना। जिस दिन अगर इंसाफ का खून बह गया उस दिन दीन बदनाम हो जाएगा, उस दिन मसलक बदनाम हो जाएगा, उस दिन रसूल की शरीयत बदनाम हो जाएगी। इसलिए सदरुल शरिया, मैं तेरे हाथ में गन नहीं दे रहा, बारूद नहीं दे रहा, कलम दे रहा हूँ। इससे तुम लोगों का फैसला करना, और जब तुम्हारे बारगाह में कोई आए तो कुरान और हदीस के मुताबिक तुम फैसला करना, और जब तुम फैसला करोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। साहब हमें क्या हो गया, हमने सब कुछ सीखा लेकिन इल्म नहीं सीखा। हम कहते गजेरी क्यों बना, क्यों गजेरी बना, क्यों नशेरी बना, क्यों जुआरी बना, इसको जहालत नहीं बना। अगर उसके पास सीने में कुरान होता तो कभी हाथ नहीं लगाता इस सब। उसके सीने में आका की हदीस होती तो कभी हाथ नहीं लगाता। माँ बाप को चेहरे पर कभी तमाचा नहीं लगाता, माँ बाप की इज्जतों को पामाल कभी नहीं करता। सब कुछ उसने को किसने कराया है, जिहादत ने कराया है। और अगर हम चाहते हैं आज भी मेरा बच्चा और मेरे कौम का नौजवान सुधर जाए तो उसका दिल दुनियादार और पैसे से मत जोड़िए, उसका दिल कुरान और हदीस से जोड़ दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा एक अच्छा और नेक बेटा बन के दिखा देगा आपको। लेकिन नहीं, हमने कहा बेटा जवान हो गया शादी कर दो, अब बेटा कमाएगा, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारेंगे। साहब एक इमाम मस्जिद के मिंबर से चिल्लाता रहा, चीखता रहा और कहता रहा कि साहब बेटों को बचाओ, जवानों को बचाओ, समाज को बचाओ। समाज किधर जा रहा है, जवान किधर जा रहा है, समाज के लोग किधर जा रहे हैं। एक इमाम मस्जिद के मिंबर से चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ये कौम हमेशा ये कहते रही मौलाना का काम है बोलना, मौलाना का काम है समझाना, मौलाना का काम है तकरीर करना, उसका अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। साहब यही आप बोलते रहे और यही कौम बोलती रही, और नतीजा ये निकला कि जिस बेटे के बारे में एक इमाम ने कहा था आपका बेटा बिगड़ रहा है, आपका समाज गुनाहों के दलदल में धंस रहा है, लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जब वही बेटा एक बाप को धक्के मारकर घर से निकालता है, वही बेटा एक बहन को गाली देता है, वही बेटा अपनी माँ को गाली देता है, वही बेटा घर में मिसबिहेव करता है, तब उस इंसान को मजहब इस्लाम याद आता है, तब उस इंसान को कुरान और हदीस याद आती है, तब उस इंसान को यह समझ में आता है कि मौलाना साहब हमें तावीज दे दिया जाए, मौलाना साहब कोई फूंक कर दिया जाए, मौलाना साहब पानी पे दम कर दिया जाए ताकि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरी औलाद सुधर जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जिस वक्त ये इमाम बोलता रहा आप सोते रहे, लेकिन आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप आम के पेड़ में तावीज लटका दे और कहें कि सेब फल जाएगा, वो नहीं सकता है। अगर सेब के पेड़ में तावीज लटका दे और कहें
انار پھل جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کامیاب رہے، بیٹے کی زندگی کامیاب رہے، گھر آباد رہے، سماج آباد رہے، اور سماج نور سے منور رہے، تو آپ کو اپنے بیٹوں کو دنیا دار نہیں، قرآن و حدیث سے جوڑیے، علماء کے بارگاہ میں بٹھائیے اور علماء سے سلام و کلام کرنے کی تلقین کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بیٹا ایک نیک بھی بنے گا، ایک شریف بھی بنے گا، ایک جنتی انسان بن کے بھی دکھا دے گا۔ کہنے اور سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گیا، میرے پاک میرے مولا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔